So, is it visible though? So today's topic is GMP and cosmetics and GMP validation. We'll mainly solve various questions and figure out the concepts regarding it. Okay. And it is, मैं बोल सको, it is quite important for your uh, GPAT and NIPER because it is in the syllabus and now it is really not predictable which part question will come. So we need to cover every aspect. Okay. And in NIPER, I have told it has become NIPER every year. I am seeing that one question comes, okay, from cosmetic. But GPAT, very rare it has come. But still, since it is in our syllabus and we have not done it during our uh, course, so we'll revise it, okay, so that if it comes, you can solve it, okay. So I'll start with the first one. If you can remember, try to answer. Okay, I will tell you everything. Okay, don't worry. So the first question is written: if titanium dioxide in sunscreen products as a topical protective, acha, the topical protective effect of titanium dioxide is arising due to one of the following properties. Identify that. So this is from cosmetics. In this question, they have told that titanium dioxide, we know titanium dioxide is used in sunscreen, right? And another product that is used in sunscreen other than titanium dioxide, anyone? Very key ingredient. তোর মনে আছে কি সানস্ক্রিন আমরা ইউজ করছি? এটা কি ইনগ্রেডিয়েন্ট ইউজ করছি কারণ মনে আছে? এটা আরেকটা টাইটানিয়াম ডাইঅক্সাইড ছাড়াও আরেকটা কি ইউজ করি? হ্যাঁ, জিঙ্ক অক্সাইডই বলছি, ঠিক আছে। তো ওটা বাদ দাও, এখন টাইটানিয়াম ডাইঅক্সাইড আমরা ইউজ করছি সানস্ক্রিন অ্যাজ আ টপিক্যাল প্রোটেক্টিভ এজেন্ট, ওকে। টপিক্যাল প্রোটেক্টিভ এজেন্ট, ঠিক আছে। এবারে তো এখানে আমাদেরকে বলতে হবে যে কোন প্রপার্টির জন্য এখানে টাইটানিয়াম ডাইঅক্সাইড কে আমরা অ্যাজ আ টপিক্যাল প্রোটেক্টিভ এজেন্ট ইউজ করছি, ঠিক আছে। আর তা ওখানে কি কি অপশন আছে? ইট হ্যাজ আ বাল্ক, হাই বাল্ক ডেন্সিটি, ইট হ্যাজ আ হাই অ্যাবজর্বিটি, ইট হ্যাজ আ লো ওয়াটার সলিউবিলিটি, ইট হ্যাজ হাই রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স। তো টাইটানিয়াম ডাইঅক্সাইড আমরা টপিক্যাল প্রোটেক্টিভ মানে কি বলতে চাইছি? টপিক্যাল প্রোটেক্টিভ মানে আমাদের এখানে হচ্ছে স্কিন আছে, ঠিক আছে। দিস ইজ আওয়ার স্কিন, ওকে। এটা আমাদের স্কিন আছে। তো স্কিনে কি হচ্ছে, আমরা সানলাইট এভাবে এন্টার করছে, এটা হচ্ছে সান, ঠিক আছে। ওপর থেকে কি হচ্ছে, সানলাইট এন্টার করছে, দিস ইজ আওয়ার সান, ঠিক আছে। So sunlight enters. Now, which part of sunlight affects the skin? That is our UV part, right? UV part has an effect on our skin, right? It affects our skin. It makes our skin tan or dull, right? So now, tell me from the what does titanium dioxide do? It is act as a topical protective agent. Means what? It reflects. ও কি করে? রিফ্লেক্ট করে দেয়। it reflects the reflect বা refract যেটা ইচ্ছে বলতে হবে, refracts the UV light that comes towards skin, right? ও কি করে? রিফ্লেক্ট করে দেয় ওই ইউভি লাইট গুলোকে যেগুলো স্কিনের দিকে আসছে। তাই জন্য কি হয়, ইউভি যে অ্যাবজর্পশনটা আছে ওটা ডিক্রিজ করে যায়, ওটা কমে যায়। ইউভি অ্যাবজর্পশন ডিক্রিজেস, রাইট? তো এবারে অপশন দেখে কেউ বলো যে তাহলে রাইট অ্যান্সারটা কোনটা হবে এখানে? রাইট। তো এখানে অ্যান্সারটা হবে অবভিয়াসলি হাই রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স। কারণ তাই জন্য কি হচ্ছে, ও রিফ্র্যাক্ট করে দিচ্ছে ইউভি লাইট গুলোকে যেগুলো স্কিনের দিকে আসছে, আর ইউভি অ্যাবজর্পশনটাকে কমিয়ে দিচ্ছে। বাকি অপশন গুলো যদি দেখো, ইট হ্যাজ হাই লাইট অ্যাবজর্বিটি, এটা তো হবেই না, অ্যাবজর্বিটি তো হচ্ছেই না, এখানে রিফ্লেক্ট করে দিচ্ছে, অ্যাবজর্ব কোথায় করছে, ঠিক আছে। বাকি অপশন গুলো বাল্ক ডেন্সিটি, হাই বাল্ক ডেন্সিটিরও কোনো নেই, লো ওয়াটার সলিউবিলিটিরও কোনো কনসেপ্ট নেই, ঠিক আছে। তো অবভিয়াসলি অ্যান্সারটা হবে ডি, দ্যাট ইজ আওয়ার, ইট হ্যাজ হাই রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স। সেকেন্ড, ইফ ইউ সি role of borax in cold creams, right? So borax cold cream में क्या काम आता है, ठीक है? तो options are antimicrobial agent. uh, Second option is to provide fine particles to polish skin. Third option is in situ emulsifier.
fourth option is antioxidant. So can anyone tell me what is the role of borax in cold cream? What is the role of borax? ओके नाउ आई एम टेलिंग यू कैसे समझ आएगा। बोरैक्स जो है ना वो मेनली क्या हेल्प करने में हेल्प करता है। इट इट एट टाइम्स इट हेल्प्स इन टू प्रोड्यूस इमल्शन। ठीक है। तो इमल्शन प्रोड्यूस करने के लिए क्या होता है वो हेल्प करता है। बोरैक्स का क्या में इमल्शन प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। एंड वी नो दैट कोल्ड क्रीम इज इमल्शन राइट। एंड इट मेक्स एंड टू मेक इमल्शन व्हिच वन इज एसेंशियल एनीवन ऑप्शन देख के। কোল্ড ক্রিম কি আছে ওয়াটার ইন অয়েল না অয়েল ইন ওয়াটার? ওয়াটার ইন অয়েল। টু মেক ইমালশন হোয়াট উই নিড আ ইমালসিফায়ার রাইট। তো এখানে কোন অপশনটা কারেক্ট হবে তাহলে? তো ইট ইজ অ্যান ইন সিটু ইমালসিফায়ার। ঠিক আছে। অ্যান্টি অক্সিডেন্টও নয়। অ্যান্টি অক্সিডেন্টের কি বলবো এক্সাম্পল নিয়ার অ্যাবাউট সেম যেটা তোরা পড়ে এসছিস। তো সেখানে তো কোথাও বোরাক্সের দূরে দূরেও লক্ষ্য ছিল না। ওখানে অ্যান্টি মাইক্রোবিয়াল এজেন্টও হবে না। পড়ে থাকলো কি টু प्रोवाइड फाइन पार्टिकल्स एंड अनदर ऑप्शन दैट इज रिमेनिंग वो है इन सिटू इमल्सिफायर। तो उसमें टू प्रोवाइड फाइन पार्टिकल्स ये भी नहीं होगा तो इसलिए आंसर होगा इन सिटू इमल्सिफायर। ओके दैट विल बी द आंसर। ओके नेक्स्ट इज इन कॉस्मेटिक प्रिपरेशन an oxidant used in an aqueous system is okay। तो हम लोग को पहले एलिमिनेशन करना होगा राइट। तो इधर अगर तुम क्वेश्चन देखो इन कॉस्मेटिक प्रिपरेशन एंटीऑक्सीडेंट यूज्ड इन एक्वस सिस्टम। ठीक है। तो एंटीऑक्सीडेंट कौन सा यूज करते हैं? एंटीऑक्सीडेंट का काम क्या होता है? इट प्रिवेंट्स ऑक्सीडेशन। इट प्रिवेंट्स ऑक्सीडेशन इफेक्ट ऑन द इट प्रिवेंट्स व्हाट ऑक्सीडेशन राइट। इट प्रिवेंट्स ऑक्सीडेशन। एंटीऑक्सीडेंट नाम से ही तुमको पता चल रहा है। तो सम ऑक्सीडेंट एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? आर वाटर सल्यूबल और कुछ वाला होता है लिपिड सल्यूबल। तो इसमें क्वेश्चन में व्हिच वन दे हैव आस्क्ड? वाटर सल्यूबल और लिपिड सल्यूबल? नॉट द लिपिड सल्यूबल। ओके नाउ वी विल एलिमिनेट अदर ऑप्शंस। ओके नाउ आई हैव टू इफ यू सी द थर्ड ऑप्शन मिथाइल पैराबिन। पैराबिन मतलब क्या? व्हाट आई हैव टोल्ड पैराबिन मींस व्हाट इट इज राइट। तो प्रिजर्वेटिव। तो ये आंसर नहीं होगा राइट। इट इज अ प्रिजर्वेटिव। वेरी गुड। इट इज अ पैराबिन क्या है? इट इज अ प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव राइट। तो ये क्या होगा? आंसर नहीं होगा कट कर देंगे। ठीक है। तो एक एलिमिनेट हो गया। सेकेंड इज second is phenol. Okay, phenol is also a preservative. Okay, phenol also sometimes acts as a preservative. Phenol is not an antioxidant, ये तो सबको पता ही है। phenol तो हम लोग पहले ही कट आउट कर देंगे। phenol भी हम लोग को पता है इट इज नॉट अ एंटीऑक्सीडेंट। तो दो ऑप्शन कट गया। नाउ इट इज रिमेनिंग सोडियम फॉर्मेल्डिहाइड सल्फोक्साइड और अल्फा टोकोफेरॉल। तो टोकोफेरॉल हम लोग पढ़े। टोकोफेरॉल वी हैव स्टडीड इन एंटीऑक्सीडेंट but is it lipid or it is water soluble? That is the concept. So now tell me tocopherol is the other name of which vitamin? किसी को याद है? It is a vitamin E, right? Vitamin E. Now tell me, this is how you have to solve, okay? মানে টোকোফেরল এটা ভেবে কনফিউজড হয়ে যেও না। ঠিক আছে। আলফা টোকোফেরল। তো ভিটামিন ই কি ছিল? ফ্যাট সলিউবল না ওয়াটার সলিউবল? তো এটা কি হবে তাহলে? লিপিড সলিউবলে পড়ে যাবে। ওয়াটার সলিউবল নয়। তাহলে রিমেনিং কোন অপশনটা পড়ে থাকলো? একটাই অপশন পড়ে আছে ওটাই অ্যান্সার হবে। কোনটা? সোডিয়াম ওয়াটার। তো এইটা হচ্ছে তোমরা যদি মনেও না থাকো আগেরদার গুলো এলিমিনেট করে সলভ করা যায়। ঠিক আছে। তো দিস ইজ অ্যান ওয়াটার সলিউবল অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সোডিয়াম ফর্মালডিহাইড সালফক্সি। ওকে ওয়াটার সলিউবল। So that will be the answer. Okay. Now next is humectant added in cosmetic preparation generally act by. The humectant का क्या काम है? Humectant is it manages humidity, moisture content. That means what? It maintains water
वो क्या करता है, वाटर कंसिस्टेंसी को मेंटेन करता है प्रोडक्ट में, ठीक है, मॉइस्चर कंटेंट को मैनेज करता है, राइट, दैट इज द रोल ऑफ अ ह्यूमेक्टेंट. नाउ विल सी द ऑप्शन. कैसे वो एक्ट करता है, मतलब उसका मैकेनिज्म क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, द एक्शन ऑफ लंदन फोर्सेस. ओके, तो वाटर कंसिस्टेंसी मेंटेन करना इसका फंक्शन है, मैं बोल तो वाटर कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन होगा, कैन ओनली बी मेड बाय दोस दैट मेक्स हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर. मींस ह्यूमेक्टेंट जिसमें OH ग्रुप मस्ट रहना ही पड़ेगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड करेगा विथ वाटर. और उस पर्टिकुलर ह्यूमेक्टेंट में हाइड्रोक्साइल ग्रुप, OH मतलब, OH मतलब ब्रिज ग्रुप, हाइड्रोक्साइल ग्रुप, राइट, हाइड्रोक्साइल ग्रुप रहना जरूरी है, राइट. क्यों जरूरी है, बिकॉज हाइड्रोक्साइल जो है, हाइड्रोक्साइल जो ग्रुप है वो क्या करता है, इट अट्रैक्ट्स एंड फॉर्म्स बॉन्ड विथ वाटर. इट अट्रैक्ट्स एंड फॉर्म्स बॉन्ड विथ वाटर, वाटर के साथ बॉन्ड करता है, ठीक है. तो अब हम लोग को बेसिक मैकेनिज्म पूछा है, तो इसमें मैं बोला कि इस, तो अब आंसर कौन सा होगा, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आंसर, दैट इट मेक्स अ पर्टिकुलर बॉन्ड विथ वाटर, हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर. तो इसमें ऑप्शन तो कौन सा ऑप्शन होगा राइट आंसर, এ হবে, ঠিক আছে. আর যদি অপশনে মানে ওরকম থাকতো যে হুইচ ইজ হিউমেকটেন, তো যদি কারো স্ট্রাকচার মনে থাকতো, বললাম না যে ওএইচ গ্রুপের ওই ব্যাপারটা, তো ওইটা মাথায় রাখতে হবে, ঠিক আছে. এখানে ফিলহাল আমাদেরকে মেকানিজম চেয়েছে, তো ইট উইল বি হাইড্রোজেন বন্ড ফর্মেশন. ওকে, তো নেক্সট ইজ फॉर्मेशन यूज्ड फॉर डेंटल हाइजीन आर नोन एज, ठीक है. ऑप्शन क्या क्या दिया है, ऑप्शन दिया है, इट अ वेरी इजी क्वेश्चन, दैट इज इनसप्लेशन, नाप्स, कैचेट्स, डेंटिफाइज. দিস আর দ্য অপশন, অপশন ডি হবে. তো এবারে বাকিগুলো আমরা দেখে নিই. ইনসাফিসিয়েন্ট একটা পাউডার প্রিপারেশন, ঠিক আছে, আর ওটার কোনো রিলেশন নেই ডেন্টাল জিনিসের সাথে, ডেন্টাল হাইজিনের সাথেই কোনো রিলেশন নেই, ঠিক আছে. স্নাপস, ওটারও একটা পাউডার প্রিপারেশন, যেটারও কোনো রিলেশন নেই, ঠিক আছে, তোমার এর সাথে. আর থার্ড অপশন ইজ ক্যাচেট. ক্যাচেট হচ্ছে সলিড ডোজেস ফর্ম, ক্যাপসুলেট টাইপের, ঠিক আছে, তো অবভিয়াসলি ওইটাও হবে না, এটাও কাট. লাস্ট ওয়ান উইল বি ডেন্টিফাইজ. ডেন্টিফাইজ এর কাজ কি, ইট প্রমোটস জিঞ্জিভাইটাল হেলথ বা ইট প্রমোটস ডেন্টাল হাইজিন. ওকে, এক্সাম্পল ডেন্টিফাইজ এর ভেতরে আবার অনেক কিছু আছে, ডেন্টাল কোন, ডেন্টাল পাউডার, অল আর dental cone, dental powder, all are examples of dentivices. So it lies within dentivices. So this answer will be dentivice. Okay. So next is thickening of shampoo may be carried by the addition of ethylene diamine tetraacetic acid, lanolin, carboxyvinyl polymer, hydroxybenzoate ester. আচ্ছা, ইথাইল ডাইনামিক টেট্রাসিটিক, এটা হচ্ছে ইডিটিএ. ইডিটিএ কারণ মনে আছে, ইডিটিএ, दिस वन इज ईडीटीए. इसका ही फुल फॉर्म है ईडीटीए. तो ईडीटीए हम लोग को पता था दैट वाज व्हाट एजेंट, चिलेटिंग एजेंट. ऑप्शन ये तो चिलेटिंग एजेंट है, तो ये तो आंसर होगा ही नहीं. दिस इज क्रॉस्ड. ओके, दिस वाज अ चिलेटिंग एजेंट, चिलेटिंग एजेंट, राइट, तो इसलिए क्रॉस होगा, दिस विल नॉट बी द आंसर. तो এখন বাকি থাকলো তিনটে ऑप्शन, तो हम लोग का बाकी रहा तीन ऑप्शन. ईडीटीए नहीं होगा क्योंकि वो चिलेटिंग एजेंट है. अच्छा, नेक्स्ट हम लोग को तीन ऑप्शन देखना होगा. लैनोनिन, लैनोनिन इज अ कंडीशनिंग एजेंट. ओके, लैनोनिन जो है वो है दैट इज अ कंडीशनिंग एजेंट, ठीक है, दैट इज अ कंडीशनिंग एजेंट, कंडीशनिंग एजेंट. ओके, लैलोनिन कंडीशनिंग एजेंट. আরো কয়টা কন্ডিশনিং এজেন্ট হয়, কেউ বলতে পারবে কন্ডিশনিং এজেন্টের আরো কয়েকটা নাম মিনিমাম? লেসিথিন ইজ দ্যাট ইজ আ ন্যাচারাল প্রোডাক্ট, দ্যাট ইজ অলসো কি বলবো, কি বলে ওটাকে, কন্ডিশনিং এজেন্ট, ঠিক আছে. আরো কয়টা হয়, লাল, আরো হয় হচ্ছে লাপা হয়, ঠিক আছে, লাপারও একটা ফুল ফর্ম আছে, এখন আমার এক্সাম মনে পড়ছে না. আর হয় হচ্ছে পিভিপি হয়, পলিভিনাইল পাইলোডিন, ওগুলো হচ্ছে পলিমার. ল্যাপাও একটা পলিমার আর পিভিপিও পলিমার, কিন্তু লেসিথিনটা হচ্ছে ন্যাচারাল
ওকে, লেসিথিন ইজ আ ন্যাচারাল ওয়ান, লেসিথিন ইজ আ ন্যাচারাল, ওকে। বাট আর কি কি হয়, মিনারেল অয়েল হয় কিছু, ঠিক আছে, আর থাকে টুক, তো এইগুলো হচ্ছে কয়েকটা এক্সাম্পল যেখানে হচ্ছে কন্ডিশনিং এজেন্ট ইউজ হয়, ঠিক আছে। আচ্ছা, দুটো আর কি রিমেনিং থাকলো, রিমেনিং আছে আমাদের হচ্ছে হাইড্রক্সি বেনজয়েড এস্টার, আর একটা হচ্ছে কার্বক্সি ভিনাইল পলিমার। আচ্ছা, হাইড্রক্সি বেনজয়েড এস্টার, দিস ইজ দিস ইজ সেম, জাস্ট নামটা ঘুরিয়ে দেওয়া আছে, দ্যাট ইজ, এটা কিসে ছিল হাইড্রক্সি বেনজয়েড, বেনজাইল হাইড্রক্সি, কোন কিসে ছিল কারোর মনে আছে? নামটা জাস্ট ঘুরিয়ে দিয়েছে। কারোর মনে পড়ছে বেনজাইল? মনে পড়ছে কি? আর আগেও আরে হাইড্রক্সি বেনজয়েটের জায়গায় বেনজয়েটটাকে আগে দিয়ে একটা কম্পাউন্ড হবে হাইড্রক্সি, সেম। কারো কি মনে পড়ছে? এখন তোরা এক্সাম্পল দেখলে তো আমার মনে পড়ে যাবে, তো ওটা হচ্ছে প্রিজারভেটিভ, ঠিক আছে। তাহলে রিমেনিং কোন অপশনটা পড়ে থাকলো? কার্বক্সিফিনলটা পড়ে থাকলো, বিকজ হাইড্রক্সি বেনজয়েট হচ্ছে বেনজাইল হাইড্রক্সাইড ইজ দা প্রিজারভেটিভ, ঠিক আছে। আরে ওটারই আদার যেগুলো বেনজাইল দিয়ে যতগুলো আছে সবই ওগুলো, ওইগুলো সব প্রিজারভেটিভের এতেই পড়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে। আর সব প্রিজারভেটিভ, ঠিক আছে, যতগুলো বেনজয়েট আছে সবই প্রিজারভেটিভ, তো ওইটা দেখে মনে করতে হবে, ঠিক আছে, যে এগুলো সবই প্রিজারভেটিভ, ঠিক আছে। তো ওখানে লাস্ট অপশন হচ্ছে কার্বক্সি ফিনাইল পলিমার, এটা হবে থিকেনিং এজেন্ট। থিকেনিং এজেন্টের কি কাজ? থিকেনিং এজেন্ট का काम है इट इंक्रीजेस द viscosity of the shampoo so that the shampoo application becomes easy। তো থিকেনিং এজেন্টের কাম কি? ভিসকোসিটি ইনক্রিজ করে দেয়, viscosity enhancement of the shampoo। तो इसलिए क्या होता है कि শ্যাম্পু অ্যাপ্লিকেশনটা ইজি হয়ে যায়, ভিসকোসিটি বেড়ে গেলে অটোমেটিক আমরা, তো ওখানে থিকেনিং এজেন্ট ওই জন্য আমাদেরকে দিতে হয়। Next is an agent used to clean the surface of teeth and thereby decrease the tooth decay mouth odor, ঠিক আছে। তো এইখানে ফার্স্ট অপশন হচ্ছে আমাদের কি কি দেওয়া আছে, অ্যাব্রেসিভ, ডেন্টিফাইস, ডেন্টাল পেস্ট, ডেন্টাল কোন আছে, এটা একটু কনফিউজিং আছে, তার রিজনটা আমি বলছি। ফার্স্ট অপশন দেওয়া আছে আমাদের অ্যাব্রেভিস, অ্যাব্রেভিস ইট ক্লিনস টুথ, টুথ তো ক্লিন করে, বাট ডিকে থেকে কোনো এফেক্ট হয় না, ডিকে কিন্তু এটা সলভ করে না, ইট ক্লিনস টিথ বাট ডাজেন্ট ডিক্রিজ ডিকে। কিন্তু আমাদের কোয়েশ্চেন কি দেওয়া আছে, উইচ ইজ ইউজ টু ক্লিন দ্য টিথ অ্যান্ড দেয়ার বাই ডিক্রিজ টুথ ডিকে। তো অ্যাব্রেভিস তো হবে না, কারণ বলো এটা ক্লিনিং হয়তো করছে বাট টুথ ডিকে থেকে করে না, ঠিক আছে, কোনো কাজ লাভ হয় না, ঠিক আছে। তো এখানে দুটো যেটা কাছাকাছি অপশন আছে সেটা হচ্ছে ডেন্টিফাইস, আর একটা হচ্ছে ডেন্টাল পেস্ট। তো ডেন্টাল পেস্ট যেটা আছে, ডেন্টাল কোনো হবে না, ডেন্টাল পেস্ট কিন্তু ফুলফিল করে, ক্লিনও করে, টুথ দিকেও করে। কিন্তু এখানে যেভাবে অপশন গুলো আছে সেখানে ডেন্টিফাইস, আমরা কি জানি ডেন্টিফাইস, আর এর আগেই ডিসকাস করা হয়েছে। ডেন্টিফাইস কি ছিল এনিওয়ান? এই কোশ্চেনটা একটু কনফিউজিং আছে, আমি রিজনটা বলছি। ডেন্টিফাইস এর কি বলা হয়েছিল? হ্যাঁ, কিন্তু এই ডেন্টিফাইস এর ভেতরেই কিন্তু ডেন্টাল পেস্টও পড়ে, ডেন্টাল পাউডারও পড়ে। তো দিস আর অল লাইজ আন্ডার ডেন্টিফাইস, ডেন্টাল পেস্ট হচ্ছে একটা পার্ট ডেন্টিফাইসে। তো সেক্ষেত্রে এখানে সবচেয়ে বেটার অপশনটা হবে যেটা, সেটা হচ্ছে ডেন্টিফাইসটাই দেয়া, ঠিক আছে। কারণ এরকম কোশ্চেন এলে ডেন্টিফাইসটা দেওয়াটা বেটার অপশন, কারণ ওটা সব কটাকে কম্প্রাইজ করে, ঠিক আছে। ডেন্টাল পেস্টও কিন্তু বলা যেতে পারে টুথ দিকে থেকে সলভ করে, কিন্তু
কিন্তু যেহেতু এখানে ডেন্টিফাইজ অপশন দেওয়া আছে, ঠিক আছে, তো সেক্ষেত্রে ডেন্টিফাইজটা বেটার অপশন, ঠিক আছে। ওকে, নেক্সটটা দেখবো। Which of the following is used in the preparation of, which not used, sorry, not used in the preparation of baby powders? তো বেবি পাউডার্স এর প্রিপারেশনে ইউজ করা হয় না। তো বেবি পাউডারের সময় একটা জিনিস মনে রাখতে হবে, we should not use any irritating we should not use any irritating products. Irritating compounds should be avoided. ওকে, নাহলে কি হবে, স্কিন ইরিটেশন দেখা যাবে বাচ্চাদের, রাইট, ছোট বাচ্চাদের, যে ওই জন্য বেবি পাউডারে কখনো ইরিটেটিং সাবস্টেন্স ইউজ করা অ্যালাউড করে না। তো এইখানে চারটের মধ্যে কেউ জানে কি কোনটা, কোন সাবস্টেন্সটা ইরিটেশন কজ করে আমাদের স্কিনে? Yes, boric acid will be the right answer. Okay, boric acid is a substance that causes skin irritation. That is why in any baby powders it is avoided. এমনি পাউডারে কিন্তু আমরা বোরিক অ্যাসিড বহুত ইউজ করছি, বাট বেবি পাউডারস স্পেশালি অ্যাভয়েড করা হয় ডিউ টু ইটস স্কিন ইরিটেশন এফেক্ট। ওকে, নাও ইস লেসিথিনিন শ্যাম্পু, এটা আগেও একজন কি একটা বললো এক্সাম্পল, আই থিঙ্ক অনুভব বলছিল। তো লেসিথিনিন সলভ শ্যাম্পু কি হিসেবে ইউজ করা হয়? অপশন দেওয়া আছে কন্ডিশনিং এজেন্ট, ফোমিং এজেন্ট, ভিসকোসিটি আর প্রিজারভেটিভ। একটু আগেই বলা হয়েছে এক্সাম্পলটা, মানে তখন অন্য অপশন ছিল তখন। হ্যাঁ, কন্ডিশনিং এজেন্ট, ঠিক আছে, ন্যাচারাল ন্যাচারাল প্রোডাক্ট হিসেবে ইউজ হয় আমি বলেছি। আর পলিমার হিসেবে ইউজ হলে পিভিপি ইউজ হয়, তারপরে ল্যাপা ইউজ হয়, ল্যাপার ফুল ফর্মটা এখন মনে পড়ছে না, ঠিক আছে। তারপরে হচ্ছে মিনারেল অয়েলও ইউজ হয়, ঠিক আছে। তো লেসিথিন ইজ আ কন্ডিশনিং এজেন্ট, ঠিক আছে, কন্ডিশনিং এজেন্ট। আচ্ছা, কন্ডিশনিং এজেন্টের আরেকটা নাম ছিল, কারণ মনে আছে কি? লেসিথিন ইজ এন কন্ডিশনিং এজেন্ট, ওকে। আচ্ছা, ভিসকোসিটি এনহান্সার এখানে একটা অপশন দেওয়া আছে, ভিসকোসিটি এনহান্সারই কিন্তু সেম জিনিস আরেকটা, আরেকটাও টার্ম আছে, ওটা কি এনিওয়ান মনে আছে? একটু আগেই দেখেছিলে। হ্যাঁ, তো ইট ইজ সেম, ওকে, ইট ইজ দ্য থিকেনিং এজেন্টই অপশন হলেও একই, ভিসকোসিটি এনহান্সার এলেও একই, ঠিক আছে। আই থিঙ্ক কন্ডিশনিং এজেন্টটাকে আর এমোলিয়েন্ট বা কিছু একটা বলে। আচ্ছা, নেক্সট ইজ fluoride contents in toothpaste should not be more than, পার্টিকুলার একটা লিমিট কোশ্চেন জিজ্ঞাসা করছে, কত লিমিট অফ দি ফ্লুরাইড কন্টেন্ট ইন আওয়ার টুথপেস্ট শুড নট বি মোর দ্যান, ঠিক আছে, কত ppm এর বেশি ফ্লুরাইড কন্টেন্টস হওয়া উচিত না টুথপেস্টে। আচ্ছা, কেউ কি জানো কি ফ্লুরাইড, ক্যান এনিওয়ান টেল মি ওয়াই ফ্লুরাইডস আর ইউজড ইন টুথপেস্ট? এখানে জিজ্ঞাসা করছে কতটা হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি, ডেন্টাল গাইজ ওটা অ্যান্টি ক্যাভিটি অ্যাক্টিভিটি হিসেবে ইউজ করে, ওই কারণে फ्लोराइड আমরা ইউজ করি, ঠিক আছে। কিন্তু फ्लोराइड जो है ना, उसका भी एक लिमिट है, क्योंकि अगर तुम ज्यादा यूज कर दोगे उससे ज्यादा देयर इज चांसेस ऑफ फ्लोरोसिस। so that is why there is a guidance provided that in order to prevent from fluorosis there is a limitation of fluoride content to be used in toothpaste. So anyone know the limit? This is a general question. লিমিটটা কারণ জানা আছে কি? 100 ppm, 500 ppm, 1000 ppm, 1500 ppm? ওকে, তো আমি বলে দিচ্ছি। তো the limit for fluoride content is 1000 ppm. So which option will be the right? তো fluoride content টুথপেস্টটা হবে 1000, ঠিক আছে। আচ্ছা, নেক্সট ইজ ক্যাস্টর অয়েল ইজ ইউজড ইন লিপস্টিক প্রিপারেশন অ্যাজ, ঠিক আছে। ক্যাস্টর অয়েল প্রিপারেশনে কি হিসেবে ইউজ হয়, ঠিক আছে। এখানে লেখা আছে ফিল্ম ফর্মার, তাহলে লেখা আছে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট বেস আর প্লাস। তো এখানে আমি বলে দিচ্ছি कैस्टर ऑयल যেটা আছে না, व्हाट इट डज, तो तुम लोग ऑटोमेटिक समझ जाओगे कि आंसर कौन सा होगा। कैस्टर ऑयल क्या करता है, लिपस्टिक का जो फिल्म फॉर्म होता है उस पे
लिपस्टिक का जो फिल्म फॉर्म होता है उस पे क्या कहता है, कैस्टर ऑयल प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू इट। तो विच वन विल बी द आंसर? इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू द फिल्म फॉर्म इन आवर लिपस्टिक। इट गिव्स, राइट, प्लास्टिसाइजर हम लोग कैप्सूल का टाइम पढ़े थे, इट प्रोवाइड्स flexibility. The same castor oil also provides flexibility to the, where it forms flexibility to the film of the lipstick. Film form of the lipstick. Okay. So that is why the answer will be number D, that is plasticizer. Okay. So now it is when which of the following test is used to determine the strength of a lipstick? তো এখানে চারটে টেস্ট দেওয়া আছে, চারটেই হচ্ছে রিলেটেড টু, এই সরি, চারটেই ইজ রিলেটেড টু আওয়ার লিপস্টিক, দ্যাট ইজ ড্রপ পয়েন্ট টেস্ট, ব্রেকিং পয়েন্ট টেস্ট, পেনিট্রেবিলিটি টেস্ট, স্টেবিলিটি টেস্ট। তো ক্যান এনিওয়ান রিমেম্বার উইচ ওয়ান ওয়াজ ইউজ টু ডিটারমাইন দ্য স্ট্রেংথ? বাকিগুলোও বলা হবে যে কি কি ছিল। Yes, breaking point test will be the right answer because it is the test that provides strength. Okay, बाकी अगर तुम ऑप्शन देखो, पेनिट्रेबिलिटी टेस्ट, पेनिट्रेबिलिटी टेस्ट नहीं होगा। ड्रॉप पॉइंट जो टेस्ट था वो हम लोग क्या करते थे कि हम लोग कैलकुलेट करते थे कि ऑयल दैट वूज आउट फ्रॉम लिपस्टिक एट व्हाट टेम्परेचर, कौन सा टेम्परेचर में ऑयल वूज आउट करता था, ठीक है। तो फिर है तुम्हारा बाकी पेनिट्रेबिलिटी टेस्ट था, ठीक है, और भी तुम्हारा जो टेस्ट था, ठीक है। और क्या क्या था तुम्हारा, और दो टेस्ट क्या था, एक तो तुम्हारा ब्रेकिंग पॉइंट टेस्ट, और एक तो और एक तो क्या था, ब्रेकिंग पॉइंट तो स्टार था। ड्रॉप पॉइंट वाला मैं बोला वो चेक करता है क्या, वो चेक करता है कि किस टेम्परेचर में क्या होता है कि ऑयल हम लोग का लिपस्टिक से यूज आउट कर रहा है, उस टेम्परेचर को हम लोग मेजर करते हैं। पेनिट्रेबिलिटी टेस्ट हम लोग विद द फॉर्म ऑफ किससे करते हैं, नीडल के थ्रू करते हैं। उसमें हम लोग क्या करते हैं, वी इंडिकेट्स क्या, वो रियोलॉजिकल जो प्रॉपर्टी है उसको इंडिकेट करता है। पेनिट्रेबिलिटी टेस्ट क्या करता है, रियोलॉजिकल प्रॉपर्टी को इंडिकेट करता है। ओके, रियोलॉजिकल प्रॉपर्टी, नॉट द स्ट्रेंथ। ओके, और एक तो टेस्ट है स्टेबिलिटी टेस्ट। स्टेबिलिटी टेस्ट क्या करता है, स्टेबिलिटी टेस्ट क्या करता है, इट वो बाय मींस ऑफ एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी टेस्ट हम लोग क्या करते हैं कि सरफेस डिफेक्ट ये सब प्रेडिक्ट करता है, तो स्टेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, एप्लीकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करते हैं। लेकिन स्ट्रेंथ जो है दैट इज हाउ वी डू थ्रू आवर ब्रेकिंग पॉइंट टेस्ट। ओके, ड्रॉप टेस्ट टेम्परेचर हम लोग मेजर करते हैं, पेनिट्रेबिलिटी हम लोग रियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, विद द एप्लीकेशन ऑफ नीडल हम लोग चेक करते हैं ऑफ द पर्टिकुलर लिपस्टिक। ओके, नेक्स्ट इज आवर, इन नेल पॉलिश पॉलीमर इज यूज्ड एज। ओके, तो नेल पॉलिश में पॉलीमर हम लोग किसके थ्रू यूज करते हैं, मतलब क्यों यूज करते, मतलब कौन सा यूज करते हैं, सॉरी, विच पॉलीमर वी यूज इन नेल पॉलिश, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, हम लोग उसको पहले एलिमिनेट करेंगे। तो पहले हम लोग का ऑप्शन क्या क्या है, नाइट्रोसेल्यूलोज, पॉलीलैक्टिक एसिड, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेल्यूलोज और सेल्यूलोज एसिटेट पिथैलेट। ओके, तो इसमें तुम लोग को दो चीज याद रखना, HPMC, इट इज अ फिल्म फॉर्मर बट इट इज नॉट यूज्ड इन नेल पॉलिश। HPMC is a film former hydroxypropyl methylose, but it is not used in नेल पॉलिश। नेल पॉलिश में हम लोग HPMC यूज नहीं करते, ठीक है। सेम एल्यूलोस सेल्यूलोस एसिटेट पिथलेट जो है ना, दैट इज ऑल्सो अ फिल्म फॉर्मर, बट इट इज ऑल्सो नॉट यूज्ड इन और नेल पॉलिश। नेल पॉलिश में हम लोग इसको भी यूज नहीं करते, वी डोंट यूज इट। तो दो ऑप्शन हम लोग का कट गया ऑलरेडी, ठीक है। अब नाइट्रोसेल्यूलोस, अब ये तुम लोग को एक चीज याद रखना होगा, नाइट्रोसेल्यूलोस, नाइट्रोसेल्यूलोस हो या एनी सेल्यूलोस डेरिवेटिव, सिर्फ नाइट्रोसेल्यूलोस ना, अदर जो भी सेल्यूलोस डेरिवेटिव हो, एनी सेल्यूलोस डेरिवेटिव, नॉट ओनली नाइट्रोसेल्यूलोस, एनी सेल्यूलोस डेरिवेटिव, दे आर यूज्ड एज फिल्म फॉर्मर इन
आवर नेल पॉलिश। तो ऑप्शन में कोई भी सेल्यूलोज डेरिवेटिव मिलेगा, दैट विल बी आवर राइट आंसर। ओके, एनी सेल्यूलोज डेरिवेटिव, बट मोस्ट मोस्ट ओकेशन वी यूज नाइट्रोसेल्यूलोज। सबसे ज्यादा हम लोग ऑप्शनली यूज करते हैं नाइट्रोसेल्यूलोज, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? हाँ, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट। अच्छा, नेक्स्ट इज हीलिंग एजेंट इन हैंड क्रीम्स इज क्या है? तो हीलिंग एजेंट बोला है। अब हैंड क्रीम्स का क्या काम है? हैंड क्रीम्स हम लोग क्या करते हैं? हम लोग क्योर करते हैं, वी क्योर डिफेक्टिव स्किन, वी क्योर डिफेक्टिव स्किन, राइट, वी क्योर द डिफेक्टिव स्किन। डिफेक्टिव स्किन मतलब क्या? मॉइस्चर डिफिशियंट स्किन, डल स्किन, स्क्रैचेस वाला स्किन, उसको हम लोग क्योर करते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा एजेंट यूज होता है? विच एजेंट इज यूज? ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा, इधर ऑप्शन दिया है सॉफ्ट पैराफिन, सॉफ्ट पैराफिन हुआ, यूरिया। सॉफ्ट पैराफिन तो होगा ही नहीं, सॉफ्ट पैराफिन को पहले क्रॉस कर दो। सॉफ्ट क्रीम का सॉफ्ट पैराफिन, पैराफिन हम लोग किस लिए यूज किए थे? किसी को याद है? हम लोग जब क्रीम बनाते हैं, वाई यू यूज सॉफ्ट, वाई वी यूज पैराफिन, सॉफ्ट पैराफिन? किसी को याद है? प्रैक्टिकल तो तुम लोग करे हुए थे, इमल्शन कोल्ड क्रीम या कुछ भी क्रीम बनाए हो तो सॉफ्ट पैराफिन तब यूज किए थे तो? एनीवन? বলতে পারিস, ঠিক আছে, ওইটাই মেনলি। ঠিক আছে, ওটা কোনো হিলিং প্রপার্টি ওর থাকে না, ঠিক আছে, ওটা একটা বেস হিসেবে ইউজ করা হয়। ঠিক আছে, তো এখানে যেটা অ্যান্সারটা অ্যাকচুয়ালি হবে সেটা হচ্ছে ইউরিয়া। তার কারণটা হচ্ছে বিজ ওয়াক্সেরও এটা কাজ নয়। ঠিক আছে, এখানে হিলিং এজেंट বলেছে। ঠিক আছে, यूरिया যেটা করে, यूरिया जो करता है वो क्या करता है? वो प्रोमोट करता है, इट प्रोमोट्स स्किन हाइड्रेशन। स्किन हाइड्रेशन को क्या करता है? इंक्रीज करता है स्किन हाइड्रेशन को, इंक्रीज करता है स्किन हाइड्रेशन। यूरिया का काम क्या है? इट इट प्रोमोट्स स्किन हाइड्रेशन, स्किन हाइड्रेशन, प्रोमोट स्किन हाइड्रेशन। तो स्किन हाइड्रेशन जब इंक्रीज होगा तो क्या होगा? ऑटोमेटिक हम लोग का स्किन जो है वो धीरे धीरे हील होना स्टार्ट करेगा। ठीक है, एंड इट विल बिकम बेटर। क्यों बेटर होगा? क्योंकि डिहाइड्रेशन जो है ना, डिहाइड्रेशन इज अ बिग कॉज फॉर आवर स्किन डैमेज। डिहाइड्रेशन बहुत बड़ा कॉज हो जाता है फॉर आवर स्किन डैमेज। डिहाइड्रेशन इज अ बिग कॉज। तो डिहाइड्रेशन हम लोग प्रिवेंट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ यूरिया, बिकॉज इट hydrates the skin. Automatically our skin gets healed. So in this case, urea will be the right answer. Okay. Okay. Next is, these are the preparation to the cheeks to impart and stimulate the rosy freshness to the skin. ये एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है। ये किसी को अगर पता है, कॉस्मेटिक्स अगर कोई पढ़े होंगे तो उसको अच्छी तरह पता होगा। देयर इज अ सर्टेन टाइप ऑफ प्रिपरेशन दैट इम्पार्ट rosy appearance on the cheeks. Okay, दैट इज इट्स प्रोड्यूस रेड टिंट टाइप का एक तो का मतलब अपीयरेंस क्रिएट करता है ऑन द चीक। तो किसी को पता है? ऑप्शन दिया है फेस पाउडर, कॉम्पैक्ट पाउडर, राजेस और वैनिशिंग क्रीम। इट इज अ डायरेक्ट डेफिनेशन टाइप क्वेश्चन। किसी को याद है? एनीवन? देखो, वैनिशिंग क्रीम तो होगा ही नहीं, वैनिशिंग क्रीम तो वैनिश हो जाता है। ठीक है, तो वैनिशिंग क्रीम विल नॉट बी द आंसर। फेस पाउडर और कॉम्पैक्ट पाउडर, लेकिन हम लोग का जो क्वेश्चन दिया है दैट इज रेड टीन। फेस पाउडर से क्या रेड अपीयरेंस आता है? एनीवन? मेकअप जो लोग करते हो, কম্প্যাক্ট তো হবে, বাট এখানে হচ্ছে কোশ্চেনটা। ঠিক আছে,
কোশ্চেনটা ব্যাপারটা হলো, এটাই মনে রাখতে হবে, এখানে দেয়া আছে কি রোজি ফ্রেশনেস। এটা ডাইরেক্ট একটা ডেফিনেশনটা কোশ্চেন থেকে এসছে, আর অনেকে এটা জানে না, ওই জন্য কোশ্চেনটা দেওয়া হয়েছে। রাজেশ যেটা আছে না, রাজেশ, ROUGS, এটা হচ্ছে কি হয়, স্পেশাল টাইপ অফ কসমেটিক্স প্রিপারেশন থাকে যেগুলো কি করে, কালার ইম্প্যাক্ট করে টু দ্য চিক। আর এটার কি কাজ থাকে, ইট স্টিমিউলেট ফ্রেশ হেলদি অ্যাপিয়ারেন্স টু দ্য স্কিন। So it stimulates fresh appearance to the skin, and it also provides a rosy tint. বাট কম্প্যাক্ট পাউডারে কিন্তু এটা হয় না, রোজি টিন্ট বলা হয়েছে, ঠিক আছে, হয়তো লালচে হয়ে যাবে মুখ, বাট রোজি টিন্ট স্পেসিফিক্যালি রাজেশে হয়। তো এই জন্য এখানে ডাইরেক্ট অ্যান্সারটা হবে রাজেশ, ঠিক আছে, নট কম্প্যাক্ট পাউডার। ওকে, নেক্সট ইজ, নেক্সট ইজ দিস কোয়েশ্চেন, দ্যাট ইজ লরেল অ্যামাইনো প্রোপাইনিক অ্যাসিড ইন শ্যাম্পু ইজ ইউজড অ্যাজ। আচ্ছা, এইটা হচ্ছে এটার শর্ট ফর্ম, এইটা, হ্যাঁ এইটাই ওইটা ছিল। এটার शॉर्ट फॉर्म का मैं ऑलरेडी बोलेছি। किसी को याद है शॉर्ट फॉर्म मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं, तो ऑटोमेटिक तुम लोग को पता होगा आंसर कौन सा होगा। ऑप्शन बी होगा, क्योंकि लापा, दिस इज द कंडीशनर, ये मैं पहले ही बोला हूँ। और पहले भी मैं बोला हूँ कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ, देयर आर नेचुरल आल्सो प्रोडक्ट यूज्ड एज कंडीशनिंग एजेंट, दैट इज पॉलीमर आल्सो यूज। तो लापा क्या था, नेचुरल था या पॉलीमर था, एनीवन? किसी को याद है, एनीवन? यस, लापा और पीवीपी ये सब था पॉलीमर। আরে তুই নামটা শুনেও তো বুঝতে পারছিস, লরালিল অ্যামাইনো প্রোপাইনিক অ্যাসিড, আর নামটা শুনে তো ন্যাচারাল একটু মনে হচ্ছে, এটা তো বেশি, ঠিক আছে। আর হচ্ছে ন্যাচারালের আমি অ্যান্সার কি বলেছিলাম, ন্যাচারাল হলে কি হবে, লেসিথিন ইজ আ ন্যাচারাল, ওকে, লেসিথিন, লেসিথিন ইজ আ ন্যাচারাল, ওকে। আরো কয়েকটা জিনিস ডিসকাস করে নেবো এই ফাঁকে, সেটা হলো আহ উম, আচ্ছা, now I will tell some names also, okay. Now you have to remember also. Okay. For nail polish, okay. For nail polish, uh, I will tell you something. You, तुम लोग के पास अगर कोई नेल या कुछ भी रहे, डाइजेस्टर या फिंगर टिप्स, उधर भी तुम लोग को शायद मिल सकता है। नेल पॉलिश जो है, नेल पॉलिश में फिल्म फॉर्मर हिसाब से किसी को याद है कोई मटेरियल क्या यूज होता है? मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ। एनी सेल्यूलोज डेरिवेटिव, ओके। नाइट्रोसेल्यूलोज इज द मोस्ट ऑप्शन, तो याद रखना दिस आर, ये मैं डिवाइस कर ला उसलिए, ठीक है। अच्छा, डाइल्यूएंट हिसाब से कौन सा यूज होता है, एनीवन नोस एनी डाइल्यूएंट यूज्ड इन नेल्स? तो उसका भी मैं बता रहा, एग्जैक्टली, वेरी गुड। अल्कोहल, बेंजीन, ये सब यूज होता है, जाइलिन, टाउलिन, वेरी गुड, जो भी डाइल्यूएंट बोले, ठीक है। और क्या होता है प्लास्टिसाइजर हिसाब से, क्या यूज होता है, एनीवन? एग्जैक्टली, वेरी गुड। तो कैस्टर ऑयल इज यूज्ड एज अ, वेरी गुड, कैस्टर ऑयल यूज होता है। और क्या यूज होता है कैस्टर ऑयल छोड़ के, वो भी रेजर सिनॉल यूज होता है, याद रखना, ओके। रेजर सिनॉल यूज होता है, डाइब्यूटाइल पिथैलेट यूज होता है, सब यूज होता है। अच्छा, हम्म, अच्छा, नाउ इन टूथपेस्ट, ओके, इन टूथपेस्ट, टूथपेस्ट में क्या होता है, टूथपेस्ट में हम लोग एब्रेसिव यूज करते हैं। एब्रेसिव का क्या काम है, इट रिमूव्स द डेंटल प्लैक,
एंड स्टेन टू पॉलिश द एनामेल। एनामेल को पॉलिश करने के लिए क्या है, डेंटल जो प्लैक है उसको रिमूव करते हैं। तो एब्रेसिव जो होता है, एब्रेसिव एंड पॉलिशिंग एजेंट जिसको बोला जाता है, तो उसका एग्जाम्पल किसी को पता है एनीवन? टूथपेस्ट यूज करते हैं हम लोग। क्यों जाने? वेरी गुड, जो भी बोले हो वेरी गुड। कैल्शियम कार्बोनेट इज द मेन एग्जाम, वेरी गुड वेरी गुड। कैल्शियम फॉस्फेट भी होता है, कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है। और क्या होता है? डाई कैल्शियम फॉस्फेट भी होता है। ठीक है। ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट भी होता है। कैल्शियम फॉस्फेट इज द मोस्ट कॉमन। वेरी गुड, जो भी बोले हो। ठीक है। और उसके बाद हम लोग और क्या क्या यूज करते हैं? फोमिंग एजेंट या डिटर्जेंट यूज करते हैं। फोमिंग एजेंट या डिटर्जेंट में एग्जांपल क्या होगा एनीवन? হ্যাঁ, এসএলএস হবে, ভেরি গুড। এসএলএস দেখ, এটা দিয়ে অনেক বাকি জিনিসগুলো ক্লিয়ার করা হচ্ছে, ঠিক আছে? एसएलएस तो होगा। और क्या होगा एनीवन? एसएलएस इज द बिग एग्जाम। अच्छा, एसएलएस আর বাকিগুলো সব ওরই डेरिवेटिव, ঠিক আছে? बाकी जो ऑप्शन है सब वो सब एसएलएस का ही डेरिवेटिव है, तो वेरी गुड। अच्छा, ये डिटर्जेंट और फोमिंग एजेंट का क्या काम है? इट इम्पार्ट्स क्लींसिंग ड्यू टू लोअर सरफेस टेंशन। ठीक है, तो इसलिए क्या करता है? इफेक्टिव क्लींजिंग क्लींसिंग प्रोवाइड करता है। ओके। और ह्यूमेक्टेन ऑलरेडी बता चुका हूँ, ह्यूमेक्टेन का क्या काम है? मॉइस्चर रिटेन करना। राइट। ह्यूमेक्टेन का एग्जाम्पल एनीवन? सेम एग्जाम्पल, बाकी जो तुम लोग पहले में पढ़े, टूथपेस्ट में भी वही यूज होता है। एनीवन? হিউমেকটেন রে এমনি নর্মাল হিউমেকটেন কয়টা নাম মনে কর না, সেটাই তো হবে। নর্মাল कोई नाम बोलो ये तब भी याद। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, जो भी बोलो वेरी गुड। ग्लिसरीन विल बी द गुड एग्जांपल। ग्लिसरीन, सॉर्बिटॉल। ओके। पॉली पॉलीपाइलिन ग्लाइकॉल। ठीक है। সরবিটল। हाँ, ওগুলো হবে। ঠিক আছে। और हम लोग क्या यूज करते हैं? बाइंडर यूज करते हैं। बाइंडर में क्या एग्जांपल है एनीवन? बाइंडर क्या करता है? इट इज यूज्ड इन टूथपेस्ट। क्यों यूज करते हैं? एड मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड फेसेस गेट्स सेपरेटेड ड्यूरिंग स्टोरेज। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग मिक्सचर ऑफ सॉलिड इसको रखने के लिए जो कि सेपरेट हो जाता है, इसलिए हम लोग बाइंडर यूज करते हैं इन टूथपेस्ट। तो बाइंडर का भी वही एग्जांपल जो लोग तुम लोग पढ़े हो। तो कोई बताओगे एनी बाइंडर दैट इज यूज्ड इन टूथपेस्ट? তো স্টার্চটা অতটা ইউজ করা হয় না, মেনলি এখানে যেটা ইউজ করা হয় গাম অ্যাকাশিয়া ইউজ হয়, অ্যাগার ইউজ হয়, অ্যালজিনেট ইউজ হয়, बेंटोनाइट यूज होता है। ठीक है। एक सेकेंड। बेंटोनाइट यूज होता है, ठीक है। बेंटोनाइट यूज হয়, কার্বোপল ইউজ হয়। প্রিজারভেটিভস কারণে প্রিভেন্ট করে মাইক্রোবিয়াল কন্টামিনেশনের থেকে। তো টুথপেস্টে যেই প্রিজারভেটিভস গুলো মেনলি ইউজ হয় সেগুলো হচ্ছে ফরমালিন, প্যারাবিন, বেনজয়েট, ওইগুলো ইউজ হয়। ঠিক আছে। অ্যান্টি ক্যারিস হচ্ছে অ্যান্টি ফ্লুরাইড গুলো ইউজ হয়। কোন ফ্লুরাইড গুলো ইউজ হয়? ক্যান এনিওয়ান টেল মি? ফ্লুরাইড তো ইউজ হতে হয়, বাট এক্স্যাক্টলি एग्जैक्टली these are the two big names, सोडियम फ्लोराइड एंड सोडियम। वेरी गुड। तो ये यूज होता है। ठीक है। डिसेंसिटाइजर यूज होता है, दैट रिड्यूस द सेंसिटाइजिंग एजेंट, सेंसिटिविटी को मतलब ये करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए। तो एनीवन कोई बता पाओगे डिसेंसिटाइजर का क्या एग्जांपल होगा? पोटेशियम नाइट्रेट इज अ बिग एग्जांपल। ओके, पोटेशियम नाइट्रेट इज यूज्ड एज a desensitizer to reduce sensitivity।
ओके। और भी कुछ होता है, एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं आ रहा। स्ट्रॉन्टियम क्लोराइड आई थिंक होता है, स्ट्रॉन्टियम। स्ट्रॉन्टियम क्लोराइड इज ऑल्सो अ डिसेंसिटिविटी एजेंट। वेरी गुड। अच्छा, उसके बाद है इन शैम्पू। अच्छा, इन शैम्पू आई हैव टोल्ड कंडीशनिंग एजेंट। थिकनिंग एजेंट हिसाब से कौन सा यूज होता है इन शैम्पू? विस्कोसिटी इनहांसर, ऑलरेडी एक तो थिकनिंग एजेंट का एग्जांपल मैं बोल चुका हूँ। फिर भी जनरल और भी कोई? एग्जैक्टली, कार्बोक्सी मिथाइल पॉलीमर्स, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज। ओके। और कुछ होता है जैसे पॉलीविनाइल एसीटेट, दैट इज ऑल्सो अ पॉलीविनाइल एसीटेट। पॉलीविनाइल एसीटेट। ट्रागाकांत is also a thickening agent. Tragacanth is a thickening agent. Okay. Pectin is also a thickening agent. Okay. আর ওই कार्बोक्सीमिथाइल सेलुलोज तो बोला है। अच्छा, चिलेटिंग एजेंट ऑलरेडी आई हैव टोल्ड। चिलेटिंग एजेंट का एग्जांपल, सबसे बिगेस्ट एग्जांपल एवरीवन नोस व्हिच वन? ईडीटीए इज द मोस्ट बिग एग्जांपल। ठीक है। और वो छोड़ के साइट्रिक एसिड इज ऑल्सो अ चिलेटिंग एजेंट यूज्ड हियर। पॉलीप्रोपाइल फॉस्फेट। ओके, दिस आर ऑल्सो अ polypropyl phosphate is also a chelating agent. Polypropyl phosphate. Okay. Anti-dandruff agent. Anyone, can anyone tell me anti-dandruff agent used? Example. This is a question that has come. Okay. I think in Naipar. उसका ऑप्शन भी मुझे याद है, इसीलिए बोल रहा हूँ। तो ये नाम याद रखो। दिस वाज, अदर भी ऑप्शन है कुछ, पर दिस वाज द ऑप्शन दैट वाज गिवन इन दैट एग्जाम, दैट वाज सेलेनियम सल्फेट। किसी को याद आया? सेलेनियम सल्फाइड। क्वेश्चन दिया था सेलेनियम सल्फाइड इज यूज्ड इन शैम्पू एज। ऑप्शन था थिकनिंग एजेंट, कंडीशनिंग एजेंट, एंटी डैंड्रफ एजेंट। तो आंसर कौन सा होगा एनीवन? और एक होता है ZPTO बोला जाता है, दैट इज जिंक पिरिडियम थायोल एन ऑक्साइड। जिंक पिरिडियम थायल एन ऑक्साइड, ZPTO बोला जाता है। फिर रेसोर्सिनॉल भी यूज होता है, रेसोर्सिनॉल यूज होता है। फिर और भी कुछ यूज होता है, थोड़ा मोड़ा, ठीक है। और बिथिनिनॉल, लेकिन सबसे बड़ा एग्जांपल वही ZPTO और सेलेनियम सल्फाइड ही है, ठीक है। और परफ्यूम्स हिसाब से हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड यूज करते हैं, कभी कभार फिनाइल मार्क सॉल्ट जो होता है वो यूज करते हैं। स्टेबिलाईजर्स हम लोग टोकोफेरॉल यूज करते हैं, BHA यूज करते हैं, BHT यूज करते हैं। तो एज अ स्टेबिलाईजर, तो BHA और BHT का फुल फॉर्म क्या है एनीवन? BHA BHT, ये लोग हम लोग एंटीऑक्सीडेंट का टाइम पढ़े ऑलरेडी। BHA and BHT full form, anyone? These are used as stabilizers. Anisole, very good. Okay, very good. ठीक है। Okay. Totally not. Okay. अच्छा, और भी कुछ टर्म था, तुम लोग थोड़ा देख लेना। उसमें कुछ फॉर्मुलेशन रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम में था, जैसे कि स्वेटिंग, ब्लीडिंग, ब्लूमिंग किसको कहा जाता है, स्ट्रिकिंग किया जाता है। तो वो थोड़ा बाद में देख लेना, ठीक है। कभी कभार टर्म पूछ लेता है, स्ट्रिकिंग किसको बोला जाता है, ब्लीडिंग किसको कहा जाता है, ब्लूमिंग किसको कहा जाता है, स्वेटिंग किसको कहा जाता है, ठीक है। थिंक सेपरेशन जो होता है ऑफ कलर्ड लिक्विड, उसको ब्लीडिंग बोलता है। स्वेटिंग होता है जब
ऑयल कंटेंट ज्यादा हो जाता है, ठीक है। ब्लूमिंग होता है जब डल एक तो सरफेस पे अपीयरेंस आ जाता है, डिजायर्ड जो होता है उसके जगह डल अपीयरेंस आता है, तो उसको ब्लूमिंग कहते थे। और स्ट्रिकिंग था आई थिंक लाइंस और बैंड्स ऑफ कलर जो रहता है जब वो फ्लोट करने लगता है, उसको आई थिंक बोला जाता था, ठीक है। तो थोड़ा कुछ टर्म्स था वो देख लें। बाकी एक बार मैं बाद में बाकी आपको बोल ही रहा कि एक बार बाद में देख लेना, ठीक है। हम लोग ऑलरेडी क्वेश्चन प्रैक्टिस है, फिर भी तुमको याद आ जाएगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब थोड़ा कुछ जीएमपी जो पार्ट है हम लोग का, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस और वैलिडेशन, उसका भी कुछ थोड़ा सम्स प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। इसके वो भी हम लोग का रह गया था, उससे भी हम लोग बाकी याद करने का कोशिश करेंगे। पहला जो क्वेश्चन दिया है क्यूएमएस, ये तो एक तो जनरल क्वेश्चन है। तो क्यूएमएस का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो क्यूएमएस जो है उसका, क्यू से हम लोग को पता है कि क्वालिटी होता है। क्यू स्टैंड्स फॉर क्वालिटी, क्वालिटी, क्यू इज क्वालिटी। अब एम क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग, मैनेजमेंट, मार्केटिंग, मैन, कौन सा होगा, एनीवन? मैनेजमेंट, राइट। क्यू विल बी मैनेजमेंट, तो इसमें ऑलरेडी हम लोग पिक कर लिए कि ऑप्शन कौन सा होगा। और सिस्टम, एस सिस्टम होता है या सर्विसेज, एनीवन? इसलिए ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, ओके। क्यूएमएस इज क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, क्यूएमएस, ओके। तो इसमें हम लोग को आंसर मिल गया। अब क्यूएमएस हम लोग को क्या पता है, विद इन दिस क्यूएमएस, क्यूएमएस जीएमपी जो है ना हम लोग का जीएमपी, इट इज अ पार्ट ऑफ दिस क्यूएमएस, इट इज अ पार्ट ऑफ द क्यूएमएस, क्यूएमएस के अंडर लाई करता है तुम्हारा जीएमए, ओके। और क्यूएमएस क्या है, मेनली इट इज अ कलेक्शन ऑफ बिजनेस प्रोसेस which focus on meeting customer satisfaction, okay। कस्टमर सेटिस्फेक्शन को, रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कुछ बिजनेस प्रोसेस हम लोग कंडक्ट करते हैं, दैट इज आवर क्यूएमएस, ओके। अच्छा जीएमपी, दिस जीएमपी वैलिडेशन, इसमें से ना कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है, एवरी टाइम एवरी ईयर तो नहीं आता, लेकिन क्या बोल तो कभी कभार ये तुम लोग थोड़ा देख के जाओगे ना, एटलीस्ट उधर जाके आंसर करवाओ, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन इज थिंकिंग टाइम, मतलब तुम लोग को नहीं पता भी है ना, फिर भी तुम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हो कि ये आंसर होगा, ओके। सो नेक्स्ट वन इज, which department should evaluate all the received materials, कौन सा डिपार्टमेंट सबको इवेलुएट, शुड इवेलुएट ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिसीव्ड मटेरियल का ऑल एस्पेक्ट को चेक कर, ये करना चाहेगा, तो क्यूए, क्यूसी, आर एंड डी और प्रोडक्शन, ठीक है। इधर इंश्योर करना मतलब क्या, इधर इवेलुएट करना मतलब दे वांट टू से इंश्योर करना, इवेलुएट मतलब इंश्योर बोलना चाहता है। तो अब कोई मुझे बताओ, इंश्योर करना कौन सा डिपार्टमेंट का पार्ट से सिंक्रोनाइज कर रहा है, anyone? यस, इट इंश्योर द क्वालिटी, राइट। तो इसलिए हम लोग का जिस ऑप्शन के साथ ये सिंक्रोनाइज कर रहा है, दैट इज आवर क्वालिटी एश्योरेंस। तो इन दिस केस क्वालिटी एश्योरेंस विल बी द right answers, because we know that at the end our health or related everything is the ultimate thing। तो quality assurance is the department जहाँ पे तुम लोग को मतलब it has to evaluate all aspect of received material in order to go it for market, right। तो इसीलिए ये जो क्वेश्चन का आंसर होगा दैट इज आवर क्वालिटी एश्योरेंस, ओके, नॉट क्वालिटी कंट्रोल और आर एंड डी। अच्छा ये भी एक जनरल क्वेश्चन है, सी इन सीजीएमपी व्हाट इट स्टैंड्स फॉर, तो एनीवन टेल मी? दिस वुड बी करेंट, ओके। अब इसका जो मीनिंग है मैं बता रहा, तो कैन एनीवन टेल मी कि व्हाई सीजीएमपी इज नेसेसरी, जीएमपी का फुल फॉर्म था गुड मैन्युफैक्चरिंग, व्हाई दिस सी इज एडेड, एनीवन? एग्जैक्टली, ओके। इन ऑर्डर टू कोप अप मतलब अप टू डेट करना, ठीक है। सी मतलब हम लोग अदरवाइज क्या होगा, जीएमपी 1000 ईयर से फॉलो होगा,
तो हम लोग को 1000 years का नहीं, हम लोग को अप टू डेट डाटा चाहिए कि किससे हम लोग बेटर कर सकते हैं, हम लोग प्रैक्टिस को, मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस से उसको फॉलो कर कैसे उसको बेटर कर सकते हैं, इसलिए हम लोग को अप टू डेट डाटा चाहिए, इसलिए करंट डेटा। ओके, अप टू डेट। अगर इस सीजीएमपी का फुल फॉर्म के जगह ये लोग पूछता था कि सीजीएमपी किसके साथ कोप अप करेगा, तो ऑप्शन अगर अप टू डेट रहता तब अप टू डेट राइट आंसर होता, बट इधर डायरेक्ट पूछा सी क्या स्टैंड करता, तो दैट इज वाई करंट विल बी द राइट आंसर। अच्छा, नेक्स्ट इज basic operational and environmental condition applied to product safe foods are called। अच्छा, सेफ्टी के बारे में इधर बोला गया। ओके, तो क्या कैन एनीवन टेल मी कि ऑपरेशन एंड कंडीशन बोला, तो इधर हाईलाइट जो है कोई कंफ्यूज खा जाएगा। बेसिक ऑपरेशन एंड एनवायरमेंटल कंडीशन। अच्छा, कोई पहले एक बार एवरीवन जो फुल फॉर्म है एक बार चेक कर लो ऑप्शन के, HACCP FSSA। अच्छा, HACCP, एनीवन नोज द फुल फॉर्म? आई थिंक इट्स हैजार्ड एनालिटिकल समथिंग था। एक बार क्यों एक गूगल मार के देखो एनीवन, কেউ একটা গুগল মেরে দেখ, হ্যাজার্ড সামথিং ছিল, হ্যাজার্ড। দেখে বল, কোনো অসুবিধা নেই, আমি তো গুগল দেখতে বললাম। দেখেছো? দেখেছিস অনুভব? ওকে, হ্যাজার্ড অ্যানালিটিক্যাল। তো হ্যাজার্ড এটার সাথে তো কোনো সিঙ্ক্রোনাইজই করছে না কোশ্চেনটা, কারণ এখানে কোশ্চেনে কি বলা আছে, বেসিক অপারেশনাল অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল কন্ডিশনস যেগুলো অ্যাপ্লাই করা হয় টু প্রডিউস সেফ ফুডস। ওকে, আচ্ছা, FSSA এটাও দেখে নে, এটাও এটা জানা অবশ্য, তাও কেউ যদি না জানে, FSSA। দেখলি? হ্যাঁ, রাইট। সেকেন্ড অপশন, থার্ড অপশনটাও কিন্তু দেখ, ওটা সেম ইনট্যাক্ট। যদি FSAI দেখিস, একই, খালি ওটা হচ্ছে আই থিঙ্ক একটা অ্যাক্ট একটা ইম্পোজ করা হয়েছে ওটা, ঠিক আছে। কিন্তু এখানেই লোকে কনফিউজ খেয়ে যায়, তখন সবাই ভাবে কি যে এই দুটোর মধ্যে কোনো একটা অ্যান্সার হবে, কারণ এখানে সেফ ফুডস এর কথা বলা হয়েছে। বাট তুই যদি क्वेश्चन अगर तुम लोग पढ़े, इसलिए क्वेश्चन पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज रिटन विच वन विल बी आवर फोकस, बेसिक ऑपरेशन एंड एनवायरमेंटल कंडीशन। जो ऑपरेशनल एनवायरमेंटल कंडीशन प्रोवाइड किया जाएगा, जाते क्या होगा, सेफ फूड्स हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। मतलब क्या, हम लोग का GMP में हम लोग का क्या है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, राइट। तो अगर GMP क्या होगा कि अगर सेफ्टी, तो GMP में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फोकस करते हैं सेफ्टी को। सेफ्टी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्वालिटी से। सेफ्टी अगर रहेगा तो वो किससे क्वालिफाई, क्वालिटी क्वालिटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्वालिटी भी उसका सही रहेगा। और क्वालिटी अगर सही रहेगा तो इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आवर गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस टू प्रोड्यूस। तो इसलिए आंसर कौन सा होगा एनीवन? GMP विल बी द आंसर। ओके, तो इसलिए रीड द क्वेश्चन। ओके, नहीं तो लोग सोचेगा FSSI और FSSS में से ही कोई आंसर हो, और इधर क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है, तो दैट इज वाई गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस विल बी द आंसर। So next is what are the 5 P's of GMP? Yes. तो ये इट इज लाइक अ बेसिक क्वेश्चन, लाइक मार्केटिंग में हम लोग का था, मार्केटिंग में हम लोग का 4P था। किसी को याद है मार्केटिंग का 4P कौन सा था? एनीवन? और किसी का 8th से में मार्केटिंग था?
उसको तो पता ही होगा। तो मैं बता रहा उसमें क्या क्या था, एक तो प्राइस था, एक तो प्लेस था, और दो तो किसी को याद है? 4 पीस था, मार्केटिंग का बात कर रहा, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस में। मार्केटिंग में 4 पी था, किसी को याद है? बाकी तो क्या था? একটা ছিল প্রোডাক্ট, আর লাস্টেরটা কারোর মনে আছে? লাস্টেরটা কি ছিল আরেকটা পি? হ্যাঁ, প্লেস এন্ড প্রমোশন ছিল, রাইট। প্লেস বলছো, ভেরি গুড। দিস ওয়ার কনসার্ন টু আওয়ার মার্কেটিং প্রমোশন। তো নাও টেল মি, what are the 5 P's of GMP? This is a general question. तो 5 P's of GMP ठीक तरह से अगर ऑप्शन पढ़ोगे तुम लोग पिक कर लोगे, तो कौन सा होगा एनीवन? ये जो ना ऑप्शन, ये सब क्वेश्चन में ना अगर तुम लोग को ना भी पता है तुम लोग ऑप्शन से पिक कर लोगे, तो इसका आंसर कौन होगा? वेरी गुड। दिस विल बी द 5 P: प्रोडक्ट, प्रोसेस, प्रोसीडियर, प्रीमिसेस एंड पीपल। बाकी ऑप्शन अगर तुम देखोगे कट आउट कैसे करोगे मैं बता रहा, दिस विल बी द आंसर। बी ऑप्शन में प्लेसमेंट है, प्लेसमेंट का तो कोई रिलेशन ही नहीं है, प्लेसमेंट इस होगा ही नहीं, तो बी ऑप्शन कट हो गया। थर्ड वाला में भी देखो, प्लानिंग, प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योरमेंट भी तुम लोग को थोड़ा घटका होगा कि प्रोक्योरमेंट हो सकता है कि नहीं होगा, लेकिन इसमें भी प्लेसमेंट दिया गया, प्लेसमेंट होगा तो ये भी कट हो गया। लास्ट वाला ऑप्शन है पर्सोनेल, प्रोडक्ट, प्रोसेस, प्रीमिसेस, प्रोडक्शन, ठीक है। तो लास्ट ए और डी में थोड़ा लोगों को प्रॉब्लम होता है, लेकिन याद रखना होगा कि पीपल जो होगा वो हमेशा ऑप्शन में होगा। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीडियर जो है वो पीपल को रिलेट करके ही हम लोग करते, तो इसीलिए पीपल विल ऑलवेज बी देयर, ओके। सो दैट इज व्हाई द आंसर विल बी द नंबर 1, ओके। 5 P's आर प्रोडक्ट्स, प्रोसेस, procedures, premises and people. Okay. So next is main objective of validation in CGMP. CGMP में वैलिडेशन का मेन मकसद क्या है, ये भी तुम लोग ऑप्शन देख के भी प्रिडिक्ट कर सकते हो। फिर भी मैं बता रहा हूँ, ऑप्शन क्या दिया है: टू रिड्यूस कॉस्ट, to improve employee performance, to ensure consistency, produce in a quality product, to enhance marketing effort। तो जीएमपी का क्या है, जीएमपी वैलिडेशन क्या करता है? इट इंश्योर्स द, वो क्या इंश्योर करता है? वो इंश्योर करता है कि दैट 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 द फार्मा फूड, ओके, the or the commodities that are manufactured are with quality, safety and efficacy, okay. It ensures that the all the commodities or food that is been employed or manufactured have the desired safety, efficacy and quality। So what will be the answer? That is the main function of CGMP, মানে objective of validation in CGMP। तो which one will be the answer? ऑप्शन देख के तुम लोग समझ जाओगे, एनीवन? Very good. C will be the answer, to ensure that the process consistently produce a quality product। Quality, safety, efficacy, that is the, और क्वालिटी की जगह सेफ्टी भी आता तब भी वही आंसर होता, तो दैट इज आवर मेन फंक्शन, ओके। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जीएमपी रिक्वायरमेंट? इसमें से कौन सा जीएमपी रिक्वायरमेंट नहीं है? तो इसमें से तुम अगर ऑप्शन देखोगे, पहला है एडिक्वेट स्पेस फॉर इक्विपमेंट एंड पर्सोनेल, फिर प्रॉपर वेंटिलेशन एंड लाइटनिंग, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू ऑल एरियाज, क्लीन एंड वेल मेंटेन सरफेस। इसमें भी तुम अगर ऑप्शन देखोगे समझ जाओगे, ठीक है। तो कोई बता पाओगे विच वन विल बी द आंसर? ठीक तरह से ऑप्शन पढ़ो, ठीक है। सी, राइट, वेरी गुड। सी, क्योंकि अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू एरिया, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस मतलब क्या? कोई भी तुम्हारा क्या होगा मीनिंग, कोई भी कहीं भी घूम सकता है,
अनरेस्ट्रिक्टेड नॉट रेस्ट्रिक्टेड। रेस्ट्रिक्टेड होता तब अलग, अनरेस्ट्रिक्टेड कोई भी प्रॉपर ड्रेस ना पहन के या फिर विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन दे कैन रोम फ्रॉम एनीवेयर। तो इसीलिए क्या होता है हम लोग का जो मैन्युफैक्चरिंग एरिया या फिर कोई भी एरिया होता है, उसीलिए हम लोग क्या किया, हम लोग डिफरेंट क्लास से भाग करके रखा है कि दिस वन इज द पर्टिकुलर दिस क्लास 100 1000। किसी को याद है 100 का 1000 कौन सा था, विच क्लास, किस एरिया का क्लास था? इसलिए अलग अलग करके सब जगह डिवाइड किया गया, प्रॉपर मेंटेन किया। अगर तुम अनरेस्ट्रिक्टेड रहोगे तो कोई भी कैसे भी लोग घूमता रहेगा फिरता रहेगा, तो इसीलिए हम लोग का डिवाइड किया गया। 100 मैन्युफैक्चरिंग एरिया का कितना क्लास था, किसी को याद है एनीवन? মনে পড়েছে? অনেক রকম ক্লাস দিয়ে আমরা ভাগ করে নিই ওই জন্য, কারণ না হলে কি হয়, পসিবল হয় না। তো 100 ক্লাস 1000 ক্লাস করে ভাগ করা আছে আমাদের ম্যানুফ্যাকচারিং। তো ম্যানুফ্যাকচারিং ক্লাসটা কারণ মনে আছে, ম্যানুফ্যাকচারিং এরিয়াটা কোন ক্লাসের মধ্যে পড়ছিল? किसी को अगर याद भी ना हो, एक बार देख लेना बाद में, ठीक है। एसेप्टिक एरिया का सबका एक तो अलग अलग करके क्लास था। वो पूरा डिटरमाइन कैसे किया था, विद द फॉरेन पार्टिकल्स कितना इन मैंने ये करेगा, उस हिसाब से हम लोग क्लास का विद भी बढ़ाए थे, किसी को अगर याद है, ठीक है। इसलिए इधर जो बाकी ऑप्शन है, एडिक्वेट स्पेस फॉर इक्विपमेंट, वो भी आंसर होगा। प्रॉपर वेंटिलेशन एरियाज, वो भी आंसर होगा। क्लीन एरियाज, ये भी आंसर होगा। अच्छा, नेक्स्ट इज डैश इज अ पार्ट ऑफ क्वालिटी सिस्टम कवरिंग द मैन्युफैक्चर एंड टेस्टिंग ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट। ये पूरा डायरेक्ट एक तो क्वेश्चन दिया गया, कोई बताओ इसका आंसर क्या होगा? जीएमपी, जीएलपी, जीएमपी, जीएचपी, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन देख के तुम लोग समझ जाओगे, हाँ। यस, बिकॉज कवरिंग द मैन्युफैक्चरिंग एंड टेस्टिंग, तो ये इट इज रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग, रिलेटेड टू जीएमपी। अब तुम लोग को ये याद रखना होगा कि जीएमपी जो है, जीएमपी, इसका दो पार्ट याद रखना होगा। जीएमपी का दो पार्ट, जीएमपी में दो होता है। एक तो होता है मार्केटिंग एंड अदर प्रोसेस, सॉरी मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग प्लस अदर प्रोसेस, प्लस अदर मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग प्लस अदर प्रोसेस। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग और अदर प्रोसेस होता है, इट लाइज अंडर, इट लाइज अंडर, लाइज अंडर 21 CFR। कोड है उसका 210। तो 211 CFR उसका कोड, रुको 1 सेकेंड। दिस इज फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर प्रोसेस, दैट इज 21 211 CFR, सॉरी 21 CFR, 211 की बोल रहा हूँ, 21 CFR, 21 CFR, और कोड है उसका। उसके बाद क्या होगा, 210, 210। नाउ अनदर पार्ट इज ऑल्सो देयर फॉर इन GMP, दैट इज finished product, for finished pharma product, for finished pharma product, for finished pharma product, okay, finished pharma product. Another part is also there, that is for finished, finished pharma product, finished pharma product। इसका जो कोड है वो है, इसका कोड क्या है, इसका जो कोड है वो है 21 CFR 211, नॉट 210, ओके। 21 CFR 211, ओके, एज
मैन्युफैक्चरिंग और अदर प्रोसेस के लिए था 210। तो और सेम ही है, 21 CFR दोनों में ही था, लेकिन फर्क वही था कि एक में होगा तुम्हारा 210 और 211। तो फिनिश प्रोडक्ट में कौन सा था एनीवन? 210 या 11? है। और फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर प्रोसेस 21 CFR 210। ओके। Which of the following is not a focus area in CGMP? Which one is not a focused area in CGMP? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिया गया है एम्प्लॉय ट्रेनिंग, वेंडर नेगोशिएशन, डाटा इंटीग्रिटी और इक्विपमेंट कैलिब्रेशन। ठीक है, तो डाटा इंटीग्रिटी मतलब इधर क्या है? डाटा इंटीग्रिटी मतलब यू कैनॉट शेयर डाटा, यू कैनॉट शेयर डाटा मतलब प्राइवेसी, डाटा प्राइवेसी, डाटा प्राइवेसी यू कैन से। तो डाटा प्राइवेसी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए एनीवन? बहुत दौड़ का, तो दिस विल नॉट बी द आंसर बिकॉज विच वन इज नॉट फोकस, नॉट वाला फाइन कर दियो, ये कट हो गया, डाटा इंटीग्रिटी नहीं होगा। ओके, उसके बाद क्या है? एम्प्लॉय ट्रेनिंग। एम्प्लॉय की ट्रेनिंग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए एनीवन? दिस शुड ऑल्सो बी डन, एम्प्लॉय ट्रेनिंग शुड बी देयर इन आवर CGMP, अदरवाइज कैसे चलेगा? एम्प्लॉयज अगर ट्रेन ही ना होंगे। एम्प्लॉय ट्रेनिंग, एम्प्लॉय ट्रेनिंग, दिस विल ऑल्सो बी नॉट बी द आंसर, एम्प्लॉय ट्रेनिंग। वेंडर नेगोशिएशन, इक्विपमेंट कैलिब्रेशन, तो मैं इधर बता रहा, वेंडर वेंडर नेगोशिएशन इज काइंड ऑफ बार्गेनिंग थिंग रिलेटेड विथ, तो क्या इज इट अ पार्ट वेंडर नेगोशिएशन एनीवन? इधर आंसर होगा, इसलिए तुम्हारा वन वन सेकेंड ना। One second। अच्छा, तो इसलिए वेंडर नेगोशिएशन इज नॉट कनेक्टेड। ओके, नाउ यू नीड टू नो वन थिंग, इन CGMP, हम लोग का जो CGMP है उसमें चार चीज लाई करता है। इन आवर CGMP देयर आर फोर थिंग्स दैट लाइज CGMP, फोर, तीन पार्ट होता है। एक तो है पर्सोनल एंड ट्रेनिंग, वन इज आवर पर्सोनल एंड ट्रेनिंग। इरेज नहीं हो रहा करके प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं तो मैं अभी इरेज करता। ठीक है, नेक्स्ट वाला पेज में करता, नो प्रॉब्लम। इन CGMP देयर इज पर्सोनल ट्रेनिंग, देयर इज पर्सोनल ट्रेनिंग, there is data integrity, second part is data integrity, data integrity, data integrity DI, और थर्ड जो पार्ट रहता है वो इक्विपमेंट कैलिब्रेशन एंड मेंटेनेंस। दिस आर द थ्री पार्ट्स ऑफ CGMP, याद रखना। ओके, अदर दिस जो भी ऑप्शन आएगा दैट विल बी नॉट सफिशिएंट। ओके, इक्विपमेंट कैलिब्रेशन एंड मेंटेनेंस, इक्विपमेंट कैलिब्रेशन मेंटेनेंस, पर्सनल एंड ट्रेनिंग एंड डाटा इंटीग्रिटी, दिस आर द थ्री। तो इसलिए ये तीनों है पार्ट्स ऑफ CGMP। ओके, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन CGMP हाउ शुड deviations फ्रॉम स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीडियर SOPs बी हैंडल? अच्छा, SOPs कैसे हैंडल किया जाएगा, ये तो तुम नाम से ही पसंद कर फिगर आउट कर सकते। इसका ऑप्शन दिया गया है इग्नोर्ड इफ माइनर डॉक्यूमेंट एंड इन्वेस्टिगेट ओनली एड्रेस्ड इफ दे अफेक्ट द प्रोसीडियर, इमीडिएटली रिपोर्टेड टू द कस्टमर। तो SOP जो रहता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीडियर, वो जनरली क्या होता है एनीवन? हम लोग का लैब में भी रहता है ना SOP। हाँ, व्हाट?
ইকুইপমেন্টকে হ্যান্ডেল করার জন্য বা কোনো এরিয়াতে এন্ট্রি করার জন্য যে স্ট্যান্ডার্ড প্রসিডিউরটা এক্স্যাক্টলি তো it is a documentation or a guideline right it is a kind of proof तो इसमें proof क्यों है it is a kind of proof why it is a kind of proof because if there is any fault seen we need to change the procedure अगर कोई fault रहा if there is a fault we need to change the procedure right मीन्स हम से कि हम लोग फास्ट ज्यादा कर रहे हम लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग प्रोसेस स्लो कर रहे तो इसलिए हम लोग कैसे परफॉर्म करेंगे प्रोसेस को दैट बिकम्स इम्पोर्टेंट राइट तो वी चेक विच वन शुड बी राइट तो बेसिकली SOPs are documentation or guidelines or proofs that that are kept for proper delivery to check if there is any problem or not so which one will be the right answer anyone B. Yes, very good. So B, document and investigated. This will be the right option. This is why in CGPMP, deviations from standard operating procedures should be handled. They should be properly documented and investigated whether there is any problem in the procedure or not. Whether it's fast or whether it's slow, it is happening slowly. How to overcome the problem. These are the, so it is documented and investigated. This I have already discussed. The GMP lies under which CFR? Anyone? which code? हाँ मैं ऑलरेडी फिनिश्ड और इसका फर्दर बोल चुका हूँ लेकिन उसका तो पर्टिकुलर कोड था दैट वाज सेम फॉर बोथ फिनिश गुड एज वेल एज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस तो which one will be the answer 21 CFR 25 CFR 26 CFR 35 CFR anyone 21 CFR any और कोई बोलना चाहेगा anyone else हाँ और मैं फिनिश गुड के लिए क्या होगा पूरा पूरा बोलो कि फिनिश प्रोडक्ट के लिए क्या होगा पूरा बोलना पड़ेगा कोड बोलना पड़ेगा हाँ 200 वाला एंड में होगा पहले होगा 21 CFR 211 राइट वेरी गुड तो 21 CFR विल बी द आंसर ठीक है अच्छा दिस वन इज द लास्ट क्वेश्चन दैट इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ वैलिडेशन इन GMP GMP में वैलिडेशन का क्या मेन कारण है व्हाई GMP में मतलब वैलिडेशन किया जाता है ठीक है अच्छा एसओपी जो है एसओपी तुम लोग को याद रखना होगा एसओपी हम लोग अगर ठीक से फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा विल नॉट get the standard result right and you will not get standard product so there will be low क्या बोल सकते हैं there will be low product right हम लोग कस्टमर के पास लो वैल्यू प्रोडक्ट जाएगा अगर ठीक तरह से एसओपी फॉलो नहीं होगा राइट एंड क्वालिटी एस्पेक्ट जो होगा वो क्या होगा इफेक्ट कर जाएगा इसलिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन एंड इन्वेस्टिगेशन आर ऑलवेज नेसेसरी राइट दैट इज वाई दैट वाज द राइट ऑप्शन अच्छा वैलिडेशन क्यों दरकार है इन GMP राइट तो हम लोग को क्या पता है कि टू प्रूव हम लोग को दैट GMP इज अचीव हम लोग को क्या करेगा इज एसेंशियल फॉर प्रोसीडियर सिस्टम टू मेंटेन कंसिस्टेंसी so that it produce desired result meeting the predetermined quality criteria जिससे क्या होगा क्वालिटी सेफ्टी एम्प्लायंस कॉम्प्लायंस करेगा विथ पर्टिकुलर GMP ठीक है तो इसीलिए तुम लोग बताओ कि इससे ऑप्शन दिया गया टू प्रूव GMP हैज बीन अचीव टू इंक्रीज प्रोडक्शन कैपेसिटी टू रिड्यूस मैन्युफैक्चरिंग टाइम टू स्ट्रीमलाइन रेगुलेटरी प्रोसेस तो विच वन विल बी द राइट आंसर मेनली यही फंक्शन है कि बोलो बोलो एनीवन एनीवन कि कौन सा राइट आंसर हो सकता है हाँ ये विल बी द आंसर बिकॉज वैलिडेशन का एक ही फंक्शन रहता है कि हम लोग का जो आ, मतलब प्रैक्टिस जो कर रहे हैं ना वो आइडियल जो प्रीडिटरमाइंड हम लोग का एक थॉट रहता है कि इस टाइप का क्वालिटी हम लोग को बरकरार रखना इस टाइप का तो उस क्राइटेरिया के साथ कॉम्प्लायंस करना जरूरी है तो इसलिए क्या होता है
इट शुड प्रूव दैट जीएमपी इज अचीव। जीएमपी मतलब गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। जीएमपी का वही फंक्शन है कि कैसे हम लोग बेटर कर सकते हैं, हम लोग का जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसको कैसे हम लोग कंसिस्टेंसी ला सकते हैं अपना प्रोडक्ट इवेल्युएशन में। तो इसीलिए क्या होता है कि प्रोडक्ट में कितना अमाउंट ऑफ जीएमपी हम लोग अचीव कर सकते हैं, दैट इज यू कैन बी यू कैन गेट थ्रू दिस गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ओके, मतलब फ्रॉम दैट इज द मेन पर्पस ऑफ आवर वैलिडेशन इन जीएमपी। ओके, तो यही कुछ था। ठीक है, जीएमपी ए रेयर एक पार्ट है, फिर भी अगर कभी आ गया, जैसे 21 CFR वाला पहले भी आया है, दैट इज वाई मैं इतना बार बोला। और अभी जीपैट का जो ट्रेंड आ गया है उससे ऐसे थिंकिंग वाला क्वेश्चन आ जाता है जिसमें तुम लोग अगर थोड़ा सोचोगे भी ना आंसर कर पाओगे। ठीक है, पहले 2-3 साल से ये स्टार्ट किया है। बाकी सारे एग्जाम, एवरी एग्जाम मैंने, कुछ गवर्नमेंट एग्जाम में भी मैंने देखा है कि उधर भी वो लोग ऐसे ही कर रहे हैं। ठीक है, मतलब अलग अलग टाइप का टॉपिक से वो लोग क्वेश्चन ला रहा। वैसे क्वालिटी एश्योरेंस का भी काफी जगह क्वेश्चन आता है। ठीक है, मतलब मैं अदर कुछ गवर्नमेंट एग्जाम को बात कर, जी जीपैट में उतना नहीं आता, लेकिन जीपैट में नहीं आता, लेकिन तो उधर तुम लोग को अगर ऐ- पता भी नहीं है उसके बारे में, तुम लोग थोड़ा सोचोगे तो फिर भी तुम लोग आंसर कर पाओगे। ठीक है, इसलिए ये सब थोड़ा प्रैक्टिस करना या थोड़ा जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आ गया, भले ही एक एक आधा क्वेश्चन है, बट वो पूरा मार्क्स आई थिंक स्कोरिंग हो जाता है अगर तुम लोग को पास। क्योंकि अगर नहीं तुम लोग कर पाओगे तो पूरा छोड़ देना होगा, क्योंकि कोई वो सब रेयर टॉपिक्स को ज्यादा देख के नहीं जाता। और कॉस्मेटिक्स में और जीएमपी दोनों ही क्लास का टाइम नहीं करवाया गया था, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा प्रैक्टिस किया जाता है, एटलीस्ट थोड़ा तुम लोग को रनिंग हो इसके बारे में। ठीक है, क्योंकि ज्यादा टाइम बचा नहीं है, इसीलिए आज को भी ये पार्ट करवाया गया। ठीक है, कॉस्मेटिक्स से फिर भी क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर में, जैसे नाइपर में बोला कि नाइपर में फ्रीक्वेंट एक एक आधा क्वेश्चन आता, एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, मतलब कॉस्मेटिक्स से जीपैट में उतना बार नहीं आया, बहुत कम आया, लेकिन फिर भी अगर आ गया, ठीक है, तो इट्स ऑलवेज बेटर टू नो। मेनली देखो, अगर कॉस्मेटिक्स का बात करोगे, टूथपेस्ट, नेल पॉलिश, टूथपेस्ट, शैम्पू और क्रीम, यही सबसे ज्यादा आता है। ठीक है, बाकी से उतना आता नहीं है, तो थोड़ा देख के जाना। ठीक है, फिर भी तुम लोग थोड़ा भी याद रहेगा तो तुम लोग आई थिंक क्वेश्चन बना पाओगे। ओके, एक सेकंड, अभी मैं थोड़ा वीडियो स्टॉप करूंगा। Okay, this comes to the end.